The year 2023 so far has been really interesting when it comes to smartphones, and we do have really interesting launches, especially priced under ₹30,000. बहुत सारे smartphones हैं यहाँ पर मेरे हाथ में. I feel you can invest in when it comes to buying a new phone under ₹30,000. वो लिस्ट के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे. उससे पहले allow me to introduce myself. Hi, you're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and in today's video, I'm going to tell you all कि वो कौन से स्मार्टफोन्स हैं. अगर आप 30,000 के अंदर नए फ़ोन्स ढूंढ रहे हैं तो आपको किन फ़ोन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. Let's begin. The first smartphone is from the house of iQOO, and it is iQOO Neo 7. Now, speaking for its technical specifications, this smartphone offers 6.78 inches AMOLED display with the support of 120Hz refresh rate. वहीं पर what keeps this smartphone alive is MediaTek Dimensity 8200 system on chip, which means that the smartphone actually want to attract a lot of mobile gamers as well. Software front पे it has got the latest one, Android 13. वहीं cameras की बात करें, for those who are interested in mobile photography, this smartphone offers 3 cameras at the back. The main camera is a 64 megapixel sensor और उसी के साथ बाकी 2 cameras आपको मिलते हैं 2 megapixel के. कैमरास की बात की है तो फ्रंट शूटर की भी ज़रूर बात करेंगे. यहाँ पर सामने की ओर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर टू क्लिक ऑल द सेल्फीज एंड टू मेक वीडियो ब्लॉग्स. जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स ऑन माई लिस्ट, दिस फोन पैक्स 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी. प्राइस की ज़रूर बात करेंगे. ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं 29,999 रुपीज़ का फॉर इट्स 8GB रैम पेयर्ड विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट. The next one is Oppo Reno 80, which comes with the same pricing as of iQOO Neo 7. This one is also priced at ₹29,999 for its 8GB RAM paired with 128GB of internal storage. अब बात करेंगे इसकी खासियत की. Oppo Reno 80 की खासियत है इसके कैमरास, because the main camera is actually a 108 megapixel sensor. उसी के साथ आपको मिलते हैं बाकी के 2 कैमरास दैट कम विद 2 मेगापिक्सल सेंसर्स. उसी तरह से इसका फ्रंट शूटर भी काफ़ी धांसू है. सामने की ओर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर. नाउ व्हाट कीप्स दिस स्मार्टफोन अलाइव इज एक्चुअली स्नैपड्रैगन 695 5G सिस्टम ऑन चिप. वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें लगा हुआ है 4800 mAh बैटरी कैपेसिटी. डिस्प्ले की बात की जाए then the viewing experience on this smartphone is also very smooth. It comes with thin bezels and the screen measures 6.7 inches AMOLED display with the support of 120Hz refresh rate. Now the third smartphone on my list is actually very reasonable as compared to the other smartphones. This one is Realme 10 Pro Plus 5G, which comes at a price of ₹25,999 for its 8GB of RAM paired with 128GB of internal storage. अब इस प्राइस टैग पे आपको इस स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो जानते हैं. जो इसका डिस्प्ले है दैट कम्स विद 6.7 इंचेस AMOLED डिस्प्ले विद द सपोर्ट ऑफ 120Hz रिफ्रेश रेट. वहीं जो इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है दैट इज MediaTek Dimensity 1080 सिस्टम ऑन चिप एंड द फोन रन्स ऑन द लेटेस्ट Android 13 एज वेल. कैमरास की बात भी करेंगे. पीछे की तरफ आपको मिलते हैं 3 कैमरास. द मेन कैमरा इज एन 108 मेगापिक्सल सेंसर जस्ट लाइक Oppo Reno 80. वहीं पर जो सेकेंडरी और थर्ड कैमरा है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल रिस्पेक्टिवली. सामने की तरफ भी इसमें लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर. वहीं बैटरी की बात करें तो द Realme 10 Pro Plus 5G पैक्स 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी. The last phone on my list is the latest Samsung Galaxy A34 5G. We recently unboxed this device and trust me, this smartphone really looks promising, especially considering the price bracket it falls into. This one is priced at ₹30,999 for its 8GB of RAM paired with 128GB of internal storage variant. I know this one is priced a little costlier, लेकिन हमने I think वो balance किया है really well with the introduction of Realme 10 Pro Plus 5G in the list as well.
तो कहीं पर थोड़ा सा कम पैसा तो कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा। स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले बताएंगे आपको इसके डिस्प्ले के बारे में। द स्मार्टफोन ऑफर 6.5 इंचेस एमोलेड पैनल विद सपोर्ट ऑफ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वहीं इसमें लगा हुआ है MediaTek Dimensity 1080 सिस्टम ऑन चिप, जस्ट लाइक द Realme 10 Pro Plus 5G. This comes with Android 13 topped with One UI 5.1. बैटरी की बात करें तो इसमें आता है 5000 की mAh बैटरी कैपेसिटी। वहीं पीछे की तरफ आपको मिलते हैं 3 कैमराज। There is a 48 मेगापिक्सल मेन शूटर accompanied by an 8 मेगापिक्सल सेंसर and then a 5 मेगापिक्सल शूटर। सामने की तरफ यूजर्स को मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा टू क्लिक ऑल द सेल्फीज एंड मेक वीडियो ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे टॉप 4 स्मार्टफोन्स दैट वी वांटेड टू मेंशन एंड टॉक अबाउट। ये चारों ही फ़ोन्स आपको 30,000 के आसपास मिलते हैं। इनमें से कोई फ़ोन है एग्जैक्ट 30,000 का, तो कोई फ़ोन है 26,000 का। वहीं जो हमारा सबसे लेटेस्ट एडिशन है इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी A34, वो आपको मिलता है 31,000 का। All the phones are really worth spending into considering your requirements। आपको कैमरास चाहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए या बैटरी चाहिए, उस हिसाब से आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ आई हैव टू पिक, हाँ, ये Oppo Reno 8T एंड iQOO Neo 7 के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो है वेयर वी कंपेयर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस 2 स्मार्टफोन्स इन पर्टिकुलर। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल। आज के वीडियो में इतना ही। लेट मी नो इनमें से कौन से स्मार्टफोन में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कौन सा फ़ोन आपके पास ऑलरेडी है, इनमें से किसी भी स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching today's video. I really hope you find it informative, and if you did, then just you know the drill. Like, share and subscribe to catch times.